الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ پاک کس کو پکارتا ہے؟ ایمان والوں، کس کو؟ جو ایمان لایا۔ ایمان کا مطلب جو اسلام پہ فالو کرتا ہے، جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جتنے صحابہ کرام حضرت آدم سے لے کر جتنے انبیاء کرام آئے، جو ان کے اوپر ایمان لاتے، ہمارے نبی کے اوپر ایمان لائے، اہل بیت پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو فرماتے، اللہ پاک اس کو پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کہا، انہیں کہا جو چوری کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جانا، جو چغل خوری کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جانا ہے نا، جو بدکار ہے اس کے ساتھ ہو جانا نہیں۔ جو سچا انسان جو ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، جو اولیاء کرام ہے، صحابہ کرام ہے، سب سے بڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچے کو ساتھ ہو جاؤ اللہ کی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قدرت دیکھیں، پونڈ کیا اللہ پاک نے کس طرح سے نظام کو بنایا، دن اور رات، دن بھی ہے اور رات بھی ہے۔ دن اللہ پاک بہت بڑا چراغا کرتا ہے، فجر کی اذان ہوئی، نماز ہونے کے بعد اللہ پاک دھیرے دھیرے چراغا کو پیدا کرتا ہے، یعنی روشنی عطا کرتا ہے، کیونکہ میرا بندہ اٹھے گا، روزی روٹی کی تلاش میں جائے گا، کام کریں گے، تو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے سورج کو نکالتا ہے۔ یہ بڑا نظام۔ ہم اگر گھر میں سوتے ہیں تو لائٹ کو آف کر کے بھی سوتے ہیں یا چالو کر کے بھی سوتے ہیں، ہے نا، دونوں کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک رات کو رات ہی بنائے نہیں، حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے رات میں بھی دن میں دونوں روشنی عطا کرتا اللہ پاک رات اور دن دونوں روشنی عطا کرتا ہے۔ رات میں چاندنی جس کو بولتے ہیں، چاند میں اتنی مٹھاس ہے، اس کی روشنی ایسی ہے لگے گا نہیں آپ کو روشنی، لیکن اللہ پاک کیا نظام ہے، رات بھی دکھتا ہے اور روشنی بھی ہوتا ہے، دونوں خوبصورت۔ اور سورج اتنی گرمی، اتنی حدت ہوتی ہے اس کے اندر، کہا گیا اگر جتنا دور چاند ہے اتنا دور اگر سورج ہوتا تو آدمی جل جاتا، بہت کافی دور ہے سورج۔ تو یہ گرمی میں دیکھیں کتنی گرمی لگتی ہے، آہر تو دیکھیں بہت گرمی۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، دن کو روشنی دیتا ہے اور رات کو چاندنی بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے اے میرے محبوب کی امتی، میں دن میں روشنی اس لیے دیتا ہوں کہ تو میرے قرآن کی تلاوت کر، تو نماز پڑھ، تو نیک کام کر، ہر نیک کام کرو۔ آپ کو میں نے سورج سے زیادہ بہتر، چاندنی سے زیادہ بہتر میں نے آپ کو آنکھ عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ آنکھ۔ ہم اپنی آنکھوں سے کتنی فٹ دور تک میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ روشنی جو ہے کہاں تک جائے گی، اس کی روشنی بس یہیں تک یا زیادہ سے زیادہ باہر تک۔ لیکن اللہ پاک نے آنکھوں میں اتنی روشنی عطا کیا ہے، میں آسمان کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اگر بلندی پہ اگر چڑھ جائے
تو वहां से अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया दिखे, आसमान के जो ओर है वहां भी नजर पड़े, इतनी आंखों में रोशनी अल्लाह पाक ने अता किया है। छोटी सी, लेकिन आंख खोल के देखो कितनी पूरी दुनिया दिखता है। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह पाक की कुदरत। और एक आंख में 1400,000 बल्ब अता किया अल्लाह पाक ने। कितने हजार? 1400,000 बल्ब गोला अता किया अल्लाह पाक ने। छोटा ऐसा लेकिन पूरी दुनिया नजर आता है। और जब दोनों आंखों की आलम ये है, दोनों आंखों का आलम ये है, तो दिमाग का आलम क्या होगा? ये अल्लाह पाक ने बनाया। आगे पीछे समझने की, सोचने की, याद रखने की भी ताकत अल्लाह पाक ने अता किया जिस्म के अंदर। याद रखने की भी ताकत अल्लाह पाक ने जिस्म के अंदर अता किया है ना। अब देखें, 2 साल की पहले की बात और आज की बात, याद रखने की कुव्वत अल्लाह पाक ने दिमाग दिया। मैं तकरीबन 10 साल 15 साल हो गए, 15 साल की बात हमको अभी तक याद है। 20 साल होने वाला, वो तक अभी तक हमको बात, बचपन में कैसे खेला करते थे वो भी बात याद है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, जो कुछ भी दिया है बहुत बड़ा करम है मेरे पास, बहुत बड़ा करम है रब का। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कहीं आपको कागज के टुकड़े पर अगर रब का नाम लिखा हो तो इसको फौरन उठाए और अपने होठों से चुभे, आंखों से लगाए और ऊंची जगह पर रख दे। ये रब का वादा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएगा। जब बिसर हाफी का गुनाह माफ हो सकता है तो हम तो उनके प्यारे हबीब उम्मती हैं, उनके प्यारे महबूब के उम्मती हैं हम, कि क्या मेरा गुनाह माफ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। रब जो कुछ भी दिया उस पर शुक्र अदा करो, ये अल्लाह पाक का वादा है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। अब जो ईमान वाला है वो भी बुराई की तरफ है ना। जो कलमा पढ़ता है ना बुराई की तरफ, चोरी भी करता है, डाका भी डालता है, गुनाह भी करता है, कत्ल भी करता है, हर गुनाह में डूबा हुआ है ना, हर चीज में वो मुब्तला है। लेकिन अल्लाह पाक बोलता है जो तुम कलमा पढ़ते हो आओ ईमान की तरफ। जो सच्चा है, जो मस्जिद के इमाम है, अल्लाह के वली हैं, साहबा किराम है, उनके रास्ते पे बताए पे चलो, सच्चे के साथ हो जाओ। अगर हम आपसे दोस्ती करेंगे तो आपको देख करके करेंगे दोस्ती आपके साथ, आप किस टाइप के हैं, यानी आप चोरी करते हैं, बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, यानी गुनाह की तरफ है या सच्चाई की तरफ है। तो अपने को देखना पड़ेगा आपको किस तरफ आप हैं। नहीं, आप अच्छे तरफ है, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तमाम अंबिया किराम को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, हर चीज को इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आपसे हम दोस्ती करेंगे। आज जब बुरे हैं तो आपसे हम दोस्ती नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है ईमान वालों सच्चे के साथ हो जाओ। जो जो बुराई की तरफ तुम लोग शामिल हो तो वहां से छोड़ के आओ सच्चों की तरफ। अल्लाह पाक का वादा है, अगर आप सच्चों की तरफ आएंगे तो रब का वादा है जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। पूरी कायनात, पूरी दुनिया, दो जहां, आसमान, जमीन, हवा, पानी, टोटल चीज बनाने वाला कौन है? मेरा रब, मेरा अल्लाह। ये मकाम है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ, सच्चे के साथ हो जाओ। अब मुझे आप ये देखना है, जो इंसान गुनाह की तरफ है, बुराई की तरफ है, चुगली की तरफ है, बेहयाई की तरफ है, जो दीन को छोड़कर उस शैतान के दीन पर है, अल्लाह का दीन छोड़कर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़कर वो शैतान के दीन पर जो अमल करता है, खबीस को दीन को अमल करता है,
वो शख्स जो नाफरमानी है, फिर भी अल्लाह पाक फरमाता है, ए बंदो उसको छोड़ के आओ, मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूं। अल्लाह पाक का फरमान। इंसान जब जुर्म करता है तो उसको सजा मिलता है ना, लेकिन अब अल्लाह पाक आपको सजा नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि किसी चार रास्ते पे या किसी चौराहे पे जब किसी गाड़ी का लाइसेंस ना हो तो पुलिस वाले 2000 का जुर्माना लेता। कितना? 2000। अगर 2000 रुपये नहीं देते गाड़ी उठा के लेके चले जाते, पकड़ के लेके चले जाते। और ज्यादा जहां वो गुस्ताखी करेंगे पुलिस वाले के साथ तो उसको सजा भी देते हैं, हाथ में हथकड़ी पहनाते हैं, उसको 2-4 डंडा बरसाते, यानी मारा भी जाता है, बरसाते भी हैं। लेकिन अल्लाह पाक का वादा है तुम कितना भी गुनाह करो लेकिन मैं आपको सजा नहीं दूंगा, मैं प्यार से आपको पुकारूंगा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? फअइना तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो? मैं इधर हूं। अनकरीब, हमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। अब देखो थाने में जाकर कितने कैदी भरपूर पड़े हुए हैं, सूखी रोटी दाल चावल जो कुछ भी मिलता है वो खाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी नियामत अता किया है, कहा तुम गुनाहों को छोड़ के आओ सच्चों की तरफ। जब तुम सच्चों की तरफ आ जाओगे, ना कोई पुलिस वाला पकड़ सकता है, ना कोई बंदा हैरान कर सकता है। जितने सारे लोग हैं कोई हैरान का सजा, अल्लाह पाक का वादा है। जब तुम आप सच्चों की तरफ आ जाओगे तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, अल्लाह पाक का वादा है। आप सच्चे बने, अखलाकमंद बने, अपने रवैया को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप अगर अच्छे बनेंगे तो आपके जो साथी है, संगत है, जो दोस्तियारी लोग हैं वो भी अच्छे बनेंगे। हमेशा अच्छे से दोस्ती करो, बुराई से नहीं। हमेशा आप अच्छे से सोहबत में रहें, बुराई से नहीं। अगर आप अच्छे से सोहबत करते हैं तो आपको सोहबत का असर पड़ेगा। आप मुझसे दोस्ती अगर करेंगे तो आपको मैं सिर्फ अल्लाह का जिक्र बताऊंगा, अल्लाह का जिक्र किया करूंगा, किसी बंदों का नहीं। आप जब मुझसे दोस्ती करेंगे तो मैं दुनिया को छोड़कर आखिरत का रास्ता आपको मैं बताऊंगा। ये चीज मेरे पास है। जो उलमाए कराम होते हैं, मस्जिद के इमाम होते हैं, ये फार्मूला जो कॉन्टेक्ट जो होता है दीन उस आलिम के पास मिलेगा, आपको किसी जाहिल के पास नहीं मिलेगा। जो आपको बताएंगे आखिरत क्या है, आखिरत वही बता सकता है जो आलिम जानता हो, इमाम जानता हो मस्जिद क्या, आम आदमी कोई भी बता सकता। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। ये अल्लाह पाक का वादा है।